नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बड़ी घोषणा, राज्य के विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति और शैक्षणिक पदों की भर्ती जल्द। बीआरएस के नेता हरीश राव ने सरकार पर कृषि माफी और रेतु बंधु भुगतान में देरी का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के कविता को जमानत दे दी। ईडी और सीबीआई मामले में राहत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नई कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर सहित अन्य शैक्षणिक और गैर शिक्षण पदों को भी जल्द भरा जाएगा। ये घोषणा BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में एक समारोह के दौरान की गई, जो UPSC परीक्षा पास करने वाले सिविल उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए वितरित करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्याहस्तम योजना के तहत आयोजित किया गया था। रेवंत रेड्डी ने इस अवसर पर BRS हुकूमत की आलोचना करते हुए कहा कि उनके शासन के दौरान विश्वविद्यालय और शिक्षा क्षेत्र को अपेक्षा की गई, जिसके कारण छात्रों को निजी शिक्षा की ओर रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि चेक वितरण का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान निकालना है। తగ్గిపోయింది మా దగ్గర నియామకాలు చేపట్టాలంటే అసలు ఎవరు రావడం లేదు అని వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో మేము మంత్రివర్గ సహచరులతోని ఆలోచన చేసినాం. ఒక పక్కన పరిశ్రమలకు సంబంధించిన యజమానులు నైపుణ్యం ఉన్న మాకు యువత దొరకడం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన సర్టిఫికెట్లు డిగ్రీ పట్టాలు పుచ్చుకొని యువత బయటకు వచ్చి మాకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడం లేదు అని వాళ్ళు మాట్లాడుతారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక అంతరం ఉంది, ఒక గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ ఏంటంటే సర్టిఫికెట్ తీసుకొని బయటకు వచ్చే వాళ్లకు వృత్తి నైపుణ్యం లేకపోవడం వల్ల, చదువుకు తగ్గ అనుభవం, చదువుకు తగ్గ శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. అందుకే అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసి ఈరోజు యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని ఒక ISB, ఒక IIIT మోడల్లో ఎవరికైతే చైతన్యం ఉన్నదో, ఎవరైతే శిక్షణ పొందాలనుకుంటున్నారో, ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడులు లేకుండా వాళ్ళకున్న నైపుణ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించాలి అని ఈ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని మనం ప్రారంభించుకున్నాం. దీన్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వ అజమాయిషీలో ఉంటే అధికార దుర్వినియోగం జరిగే అవకాశం ఉందని చర్చలు జరగడం, సిలబస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ సిలబస్ను నిర్ణయించాలంటే కూడా ప్రభుత్వంలో ఆలస్యం జరుగుతుందని కొంతమంది విజ్ఞులు సూచన చేయడంతో కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీ డ్రివెన్ యూనివర్సిటీగా మనం ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీంట్లో మహీంద్రా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్పర్సన్ ఆనంద్ మహీంద్రాని ఈ యూనివర్సిటీకి చైర్పర్సన్గా మనం ఈరోజు వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈరోజు మహీంద్రా యూనివర్సిటీని ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వాళ్ళని యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీకి చైర్పర్సన్గా మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వారు ఆమోదించారు. ఈరోజు IIIT చైర్పర్సన్గా పనిచేసిన శ్రీనిరాజును చైర్పర్సన్గా పెట్టినాం. వివిధ పరిశ్రమలు, రెడ్డి ల్యాబ్స్ కావచ్చు, SBI బ్యాంక్ కావచ్చు, అదానీ గ్రూప్ కావచ్చు, ఇతర కీలకమైన పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వ్యక్తులందరినీ కూడా ఇందులో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్గా మనం నియమించడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా నిధుల సేకరణ నుంచి శిక్షణ ఇచ్చే వరకు కంప్లీట్గా ఈ బోర్డే పర్యవేక్షిస్తుంది. ప్రభుత్వం కేవలం ఫెసిలిటేటర్ మాత్రమే. అందుకే ముచ్చర్లలో నిర్మించబోయే 4th సిటీలో 60 ఎకరాల భూమిని, దాన్ని నిర్మించడానికి అవసరమైన కోట్ల రూపాయల నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ వృధా కాకూడదని ఈ సంవత్సరం 2000 మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని SK ఇంజనీరింగ్ అకాడమీలో ఈ సంవత్సరం 2000 మందిని ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇవ్వమని ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ను ఈ యంగ్ ఇండియా యూనివర్సిటీలో ఎంపిక చేస్తున్నాం. సర్టిఫికెట్ కోర్సులు ఉంటాయి, డిప్లొమా కోర్సులు ఉంటాయి, డిగ్రీ కోర్సులు ఉంటాయి. ఇందులో ఉత్తీర్ణులైన వాళ్ళు డిగ్రీ నుంచి భవిష్యత్ పోటీ పరీక్షలకు కానీ ఇతర దేశాలలో చదువుకోవడానికి అవసరమైన అవకాశాలన్నీ కల్పించడానికి ఈరోజు ఆ యూనివర్సిటీని మనం తీర్చిదిద్దుతున్నాం. ఇదే కాకుండా నిన్నగాక మొన్న జరిగిన ఒలింపిక్స్లో మన దేశం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్
ఆశించిన స్థాయిలో కానీ ప్రజలు ఊహించిన స్థాయిలో కానీ లేదు. చిన్న చిన్న దేశాలు చాలా మెడల్స్ తెచ్చుకున్నారు, కానీ 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న ఈ దేశానికి ఒలింపిక్స్లో ఒక రకంగా అవమానం జరిగినట్టే. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మొన్న నేను విదేశీ పర్యటనలో భాగంగానే సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళిన. అక్కడ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి నేను అక్కడికి వెళ్ళిన. సౌత్ కొరియాకు 32 పథకాలు వస్తే ఒక చిన్న దేశంలో 16 పథకాలు నేను వెళ్ళిన యూనివర్సిటీకి వచ్చినాయి. అందులో ఒక అమ్మాయికి 3 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చినాయి ఒలింపిక్స్లో. ఒకే అమ్మాయి 3 గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టింది. అంటే శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా, నైపుణ్యాన్ని రాబట్టడం ద్వారా ఒలింపిక్స్లో కూడా రాణించిన ఆ దేశం మన దేశానికి, మన యువతకు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అందుకే సౌత్ కొరియన్ యూనివర్సిటీతో మాట్లాడి యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని కూడా వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మన స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా నెలకొల్పుతున్నాము. ఎందుకంటే 2028 ఒలింపిక్స్లో అత్యధికంగా మెడల్స్ ఈ తెలంగాణ యువత సాధించాలన్నది మా లక్ష్యం. ఈ ఒకప్పుడు FA ఏషియన్ గేమ్స్ కానీ, నేషనల్ మిలిటరీ గేమ్స్ కానీ చాలా గేమ్లు నిర్వహించిన 2000-2002 సంవత్సరంలో నిర్వహించిన గొప్ప అద్భుతమైన స్టేడియంలు గచ్చిబౌలిలో స్పోర్ట్స్ విలేజ్ దాదాపుగా ఈ 15 సంవత్సరాలు నిరుపయోగంగా మారిపోయింది. వీటన్నిటిని కూడా తిరిగి ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలి. వీటన్నిటిని కూడా తెలంగాణ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఒక ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ యువతకు క్రీడల పట్ల ఆసక్తిని కల్పించడమే కాకుండా తెలంగాణ యువతకి అద్భుతమైన శిక్షణను ఇవ్వడం ద్వారా ఒలింపిక్స్లో ఈ దేశానికే తలమానికంగా తెలంగాణ యువతను మార్చాలని ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. తొందరలో ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और चंद्रयान गुट्टा विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक स्थानों के खिलाफ विध्वंस की धमकी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने विशेष रूप से फातिमा शिक्षा संस्थान पर हमले की निंदा करते हुए कहा है कि 40,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की है और इस पर हमले करने वालों को कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। ओवैसी ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई उनके प्रति दुश्मनी रखता है तो वो सीधे उनके पास आए और तलवारों और बंदूकों से निपटे, लेकिन उनके शैक्षणिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। हैदरा द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके शैक्षिक प्रयासों से ईर्ष्या करते हैं और वंचितों की प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विरोधियों की निंदा करते हुए कहा है कि मुझे गोली मार दो लेकिन मेरे शैक्षणिक स्थानों को नष्ट मत करो। और अगर कोई समझ रहा है कि इन इमारतों को ढाकर हमारे अज़्म व हौसलों को कम करने, इससे बुलंद इमारतें बनाऊंगा, इतनी बुलंद बनाऊंगा कि कुतुब मीनार की बुलंदी भी शर्मा जाए, वैसे बुलंद इमारतों को बनाता रहूंगा। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा जुनून है। ऐसा कहां से आ रहा मुझे भी नहीं मालूम। अब लोगों को शिकायत रहती है, शिकवा रहता है, अरे बाबा इतना पैसा कहां से आ रहा है मेरे पास? अरे भाई मेरे से शिकायत क्यों, अल्लाह से शिकायत करना। अरे अल्लाह तू इस गुनहगार को क्यों दे रहा, हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे कि ऐसे ही माना दे। मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं तो सही है। मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना दो। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा दो। इससे कौम की भलाई होगी ना। मुकाबला करना है तो ये मुकाबला करो। अकबर तूने बल्लागुड़े में ऐसी इमारत बनाई तो हम इससे अच्छी बनाए। अकबर तू हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हम लाखों को पढ़ा रहे हैं। अकबर तू लाखों खवातीन को हुनर दे रहा है तो हम सैकड़ों को देंगे, करोड़ों को देंगे। अकबर तो 1,000 यतीमों की कफालत कर रहा है, हम 10,000 यतीमों की करेंगे। मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना, इससे कौम का भी फायदा है,
नहीं, अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना। यही हो गया होगा भाई। नहीं, अकबर साहब ऐसा क्यों रखे, ऐसा रखना। अकबर साहब खाने पे क्यों रखे, सर पे रखना। अकबर साहब सीने पे क्यों रखे, पीठ पे रखना। आप बताओ, ठीक है भाई, मेरे हाथ में रखने का सलीका नहीं आया, मुझे काबिल नहीं हूं। अल्लाह ने आपको नेक बनाया, काबिल बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा। सही हाथ रखना आपको अल्लाह ने सिखाया है, तो चलो आप सही रखो। नहीं, हम रखेंगे नहीं, जो रख रहा है उसको बोलेंगे ये तेरा है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। हाँ बताओ, ये मिसाल हो गया कौन। खैर महाराज, मुझे उनकी परवाह नहीं है। हमारा काम जारी था, जारी है, जारी रहेगा। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने सरकार पर कृषि माफी के वादे पूरा न करने और ऋतु बंधु भुगतान में देरी का आरोप लगाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में राव ने मांग की है कि सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार मुफ्त भूमि नियमितीकरण योजना को तुरंत लागू करे। राव ने कहा है कि किसान वर्तमान में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और राज्य में बुखार के प्रकोप के कारण लोग बढ़ते चिकित्सा खर्चों से जूझ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार को किसानों और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी और सीबीआई के द्वारा शुरू किए गए मामले में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की एमएलसी के कविता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये देखते हुए कविता को जमानत दी है कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमे के समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है। जमानत के इस उद्देश्य से कविता को राहत मिली है, जो दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थी। Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bail today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail. What are these? That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. During the hearing, court made some observation regarding ED and CBI and the investigation. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bail today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail. What are these? That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. During the hearing, court made some observation regarding ED and CBI and the investigation. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bail today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail. What are these? That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. During the hearing, court made some observation regarding ED and CBI and the investigation. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bail today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail. What are these?
That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 सितंबर से चंडीगढ़ में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। ये निर्णय बरनाला में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। किसान नेताओं ने पहले 27 से 31 अगस्त तक पंजाब में डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन पंजाब सरकार विधानसभा सत्र के कारण जो 1 से 4 सितंबर तक आयोजित होगी, विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे का मंच तय हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच 85 सीटों पर सहमति बनी है, जबकि 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की घोषणा की गई है। आज दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी है और समझौते पर आधिकारिक मुहर लग गई है। इस गठबंधन के तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करेगी और संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेगी। और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं, उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। अब इसमें खरा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे तो would you like to say something? The idea is to protect the soul of the Kashmir, because on one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. बताया अलायंस का जो स्पिरिट है, अलायंस का स्पिरिट जो है डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया कि ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, 51 टोटल उसका होगी ना। No, that also I added. No. 80 plus. अगर क्लैरिकल कुछ होगी 32 एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स and we have narrowed it down to 5 seats and over and above these 88 seats we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party, so in total it comes to 90 seats जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव ए स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है
और उसी के हिसाब से we'll start our issuing this mandates from right now. Yes. किसानों को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने बीजेपी से इस मामले में स्पष्टीकरण देने और कंगना रनौत को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा है कि कंगना रनौत किसानों को हत्यारे और व्याभिचारी कहकर बेहद अपमानजनक बना दिया है। श्री नेत ने कहा है कि इस तरह के बयान सुनकर लोगों को शर्म आ रही है और वह गुस्से में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रनौत जो अब केवल एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि बीजेपी सांसद भी है, ऐसे विवादित बयान देने में माहिर हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रनावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह सम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं।
आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से। एलन मस्क ने आज एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो यह अमेरिका और उसके लोकतंत्र के लिए एक आपदा होंगी। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र और अमेरिका को बचाएंगे, मेरे शब्दों को याद रखें, कमला हैरिस एक आपदा होंगी। इस बयान के बाद मस्क की टिप्पणी पर विभिन्न हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। आखिर में हेडलाइन फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बड़ी घोषणा, राज्य के विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति और शैक्षणिक पदों की भर्ती जल्द। बीआरएस के नेता हरीश राव ने सरकार पर कृषि माफी और रेतु बंधु भुगतान में देरी का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के कविता को जमानत दे दी, ईडी और सीबीआई मामले में राहत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। वन टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ, मुझे दीजिए इजाजत।